Hello children, today you will get to know about adverbs mentioned in your English grammar book. The first question is, what is an adverb? An adverb is a word that adds meaning to a verb, an adjective, another adverb or even the whole sentence. एक adverb क्या है? In हिंदी adverb को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब और क्रिया विशेषण क्या है? जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब इवन होल सेंटेंस का जो मीनिंग या क्वालिटी को बताता है उसे कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चंस ऑफ हाउ, वर, when, how much, how often and why. When you will get the answer of how, where, when, how much, how often and why, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, एमिली रन्स फास्ट। You see in this sentence, एमिली दौड़ रही थी। कैसे? फास्ट दौड़ रही थी, है ना? तो इसमें आपको किसका आंसर मिला? ये किसका बता रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है रन्स का, वर्ब का। रन्स इज मेन वर्ब, तो वर्ब पे को क्वालिफाई कर रहा है। दैट्स व्हाई फास्ट इज एन एडवर्ब। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। There are mainly three classes of adverbs. First is simple, second is interrogative, third is relative. In simple adverbs, there are mainly 8 subclasses. First is adverb of manner, adverb of second, place, third, adverb of direction, fourth, adverb of time, fifth, adverb of number or frequency, फिर adverb of degree, next adverb of affirmation or negation, and last one or eighth one is adverbs of purpose. First, adverbs of manner. Adverbs of manner answer the question of how or in what manner. किसका आंसर देता है एडवर्ब ऑफ मैनर? हाउ का या फिर इन व्हाट मैनर मीन्स किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मंजू इज सिंगिंग स्वीटली। In what manner Manju is singing? The answer is sweetly. That's why sweetly is adverb for manner. Children, generally adverb of manner में जो adverb कैसे पहचानोगे, उसमें लास्ट में ly जनरली आता है, जैसे sweet, sweetly, bright, brightly, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर को रिकॉग्नाइज करना और उसको पहचानना बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverbs of place
Answer the question of where. किसका आंसर बताते हैं? Where. For example, the children are playing outside. The question is, where are the children playing? The answer is outside. That's why outside is adverbs of place. Adverb of direction. Adverbs of direction end in WARDS and express movement in a particular direction. For examples, upwards, homewards, southwards and inwards. इसमें लास्ट में WARDS लगता है. Next is adverb of time. Adverb of time answer the question of when. जब when का आंसर मिलता है या फिर फॉर हाउ लॉन्ग का आंसर मिलता है तो जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई मस्ट वेक अप अर्ली. तो इसमें व्हेन का क्वेश्चन क्या है? आंसर मिलेगा टुमारो. व्हेन से जब आप इसमें आंसर क्वेश्चन करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? टुमारो. तो दैट्स व्हाई टुमारो इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. Adverb of number or frequency answer the question of how often. How often का जब आंसर मिलेगा वो adverbs of frequency होगा. For example, last year Manju was always late for school. But this year she is usually on time. The question is, how often was Manju late for the school last year? The answer is always. And when you ask the question, how often is she on time of this year? The answer that you will get usually. So that's why always and usually क्या होगा? वो adverbs of number or frequency. Adverb of degree. Adverbs of degree answer the question of how much or to what extent. कितना और कितना हो सकता है तो adverbs of degree. Ostrich run fast. Very fast. अगर केवल फास्ट बोलोगे तो ये डिग्री नहीं शो करेगा. जब आप वेरी फास्ट बोलोगे दैट विल बी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन. एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन से और emphasize that something is true or untrue. कोई सी घटना सही है या नहीं है, यह एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन
और निगेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, I have never seen the ताज। मैंने कभी भी ताज को नहीं देखा है। तो इसमें नो में मिल रहा है अनट्रू, तो नेवर से, तो ये होगा negation. So I will certainly come for the trip to आगरा। तो इसलिए मैं आगरा में certainly आऊंगा देखने के लिए ताज को। तो ये हो गया adverbs of affirmation और negation। Adverbs of purpose। Adverb of purpose। Adverbs of purpose answer the question of why। why का आंसर जब मिलेगा वो adverbs of purpose होगा। They are usually phrases or clauses rather than single word। जो adverbs of purpose होता है या तो phrase होगा या फिर clause होगा। For example, I am studying so that I get good marks। मैं पढ़ रही हूँ क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। So that I get good marks, it is clause। एडवर्ब ऑफ पर्पस जो होता है वो फ्रेज में होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। इफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसमें कोई फुल मीनिंग नहीं होता है वो फ्रेज होगा, और क्लॉज होगा मीनिंग रहता है। तो आई एम स्टडिंग सो दैट आई गेट गुड मार्क्स। तो इसमें आई एम स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, व्हाई? Because or so that I get good marks। so that I get good marks is adverbs of purpose। adverbs और adjectives आप कैसे करके समझोगे कि the word is adjective or adverb? Many adverbs, especially adverbs of manner, are derived from adjectives। Loyal, already I told you, last में adverb of manner में generally ly लगता है। Loyal, loyal is adjective, loyally it is adverb। Kind, kindly। Slow, slowly। Rati seems kind। In this sentence, kind is adjective। Rati talks kindly, kind, kindly। In this sentence, kindly is adverb। We use adjectives with linking verbs such as be, seem, appear, smell, and look। We use adverbs of manner only with action verbs। adverb of manner जो होता है उसमें उसको केवल आता है एक्शन वर्ब्स से। एक्शन वर्ब्स कौन से थे इन द अबव सेंटेंसेस? रति सेम्स, सेम्स इज एक्शन वर्ब, एंड रति टॉक्स, टॉक्स इज एक्शन वर्ब्स। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लगता है हमेशा एडवर्ब एक्शन वर्ब के साथ। एडजेक्टिव जो है जनरली हम लिंकिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, सच एज बी मतलब इज, एम, आर, सीम्स, अपीयर्स, स्मेल एंड लुक। और जो हम एडवर्ब ऑफ मैनर है वो केवल एक्शन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एडजेक्टिव, for example, the rose smells sweet, it is adjective। Joe's singing sounds
sit, adjective. जो sings sweetly, it is adverb. An adjective describes a noun or pronoun. Adjective noun और pronoun को describe करता है, उनकी quality बताता है. But an adverb describes an action. एक action को describe करता है adverb. अब इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा है. The rose smells sweet. तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? रोज के बारे में बताया जा रहा है. That's a sweetest adjective. जो sings sweetly, sweetly क्या? sing गाने के बारे में बता रहा है, तो ये वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है. तो that's why sweetly is adverb. Position of adverbs. एडवर्ब को कहाँ लगाया जा सकता है? An adverb can be placed at many positions in a sentence. Adverbs are almost never placed between a verb or its object. Adverb को कभी भी एक verb या फिर उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखा जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स वेरी मच हिज सिस्टर. तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिज सिस्टर एंड वर्ब लव्स. अगर ये सेंटेंस बोलेंगे द सेंटेंस इज रॉन्ग. द करेक्ट सेंटेंस इज ही लव्स हिज सिस्टर वेरी मच. सेकेंड रूल इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली placed after the intransitive verbs. Generally intransitive verbs के बाद लगाया जाता है adverbs of manner के में. For example, Mandira is talking loudly. Loudly is adverb of manner. देखिए इसमें ly यूज हो रहा है. That's why it is adverb of manner. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाया जाता है. वन मोर एग्जाम्पल, नरेन स्पीक्स सॉफ्टली. तो इसमें लास्ट में लगाया जाता है. नेक्स्ट इज इफ एन एडवर्ब रेफर्स टू द प्लेस और स्पीड ऑफ समथिंग, we can place it before the verb. यदि कोई एडवर्ब प्लेस या स्पीड को बताता है तो हम उसको एडवर्ब को मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस को वर्ब के पहले जनरली लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ग्रेजुअली कैचिंग अप विद द डेवलप्ड कंट्रीज. इंडिया क्या कर रहा है? डेवलप कंट्री जो है उनके साथ अब उसी के अकॉर्डिंग उसके जैसा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है. कैचिंग इज वर्ब, तो ग्रेजुअली इट इज डिग्री बता रहा है, पेस को बता रहा है या स्पीड को बता रहा है. तो पहले रखे. पेस या स्पीड को बताता है तो जनरली एडवर्ब्स को वर्ब के पहले रखाया जाता है. अनदर एग्जांपल इज द क्राउड्स आर रैपिडली डिस्पर्सिंग. क्राउड क्या है? धीरे धीरे हटते जा रही है. डिस्पर्सिंग इज वर्ब, तो उसके पहले स्पीड. कैसे, किस तरीके से? नॉट फास्ट, रैपिडली. तो ये पेस या स्पीड को बता रहा है, तो दैट्स व्हाई मेन वर्ब के पहले रखा गया है. Adverb of manner that qualify transitive verbs are usually placed after the object. Adverb of manner क्या है? जो कि ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है. तो जनरली
उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड recited the poem softly. In this sentence you see recited is main verb and the object is the poem. तो softly क्या है, कैसे पढ़ रहा है? softly पोएम को कैसे पढ़ रहा है? तो softly, that's why softly, softly adverb of manner. तो after the object it is placed. Next rule is they can be placed before the verb. क्या हो रहा है? कभी कभी जो है ये पहले भी, वर्ब के पहले भी रखा जाता है. The child softly recited the poem. Here you see recited is verb, the poem is object. तो verb के पहले भी कभी कभी लगाया जाता है. Next rule is they can also be placed at the beginning of the sentence. Then they are followed by a comma. यदि सेंटेंस के पहले यदि एडवर्ब को लगाया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को, तो उस एडवर्ब ऑफ मैनर को कॉमा से बाकी सेंटेंस से अलग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, softly the child recited the poem. In both, I have in all these conditions the same example I used here. तो इधर देखिए, इस द softly it is adverb of manner. तो adverb of manner को जब स्टार्टिंग में रखा गया तो किससे अलग किया गया? कॉमा से. तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को adverb of manner से अलग किया गया. When there is an auxiliary verb, the adverb can be between the main verb and the auxiliary verb. It should not be before the auxiliary verb. यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब भी होता है, तो जनरली एडवर्ब को हेल्पिंग जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जा सकता है, पर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले कभी भी नहीं रखा जाता. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज सॉफ्टली reciting the poem. Here you say is the auxiliary verb or helping verb. Reciting is main verb. In both verb, between these both verbs, we placed adverb softly, adverb of manner. तो पर अगर इसको इस तरीके से बोलोगे, the child softly is reciting the poem, then the sentence will be wrong. Adverbs of place and adverbs of time are usually placed at the end of the sentence. Adverbs of place और adverbs of time generally क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में ही लगाया जाता है. The children are playing outside. Already I told you, when you get the answer where, the answer will be adverb of place, and when you question with when, the answer will be adverb of time. The children are playing outside. In this sentence, outside is what? It is outside is adverb of place. तो the children are playing outside. Where are the children playing? It is outside. देखिए इसमें लास्ट में लगाया गया है ना. तो यह है adverb of place और adverb of time को जनरली सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है. If we place them at the
beginning of the sentence, it changes the emphasis of the sentence. यदि हम इसको पहले रखते हैं तो सेंटेंस का जो हम बताने चाहते हैं वो चेंज हो जाता है. Outside the children are playing. बाहर बच्चे खेल रहे हैं. तो इसको जनरली कॉमा से अलग किया जाता है. नेक्स्ट इज adverbs of frequency are usually placed before the main verb, after an auxiliary verbs. तो वही है आपको पहले जो बताया गया है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है. एज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर में भी जब है एडवर्ब को कभी कभी हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में रख सकते हैं. इन द सेम manner we can also place the adverbs of frequency. The word adverb we can place between the helping verb and main verb. तो इधर ये देखिए, रोहन had always traveled by train. किस तरीके से? ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं. तो हैड इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रेवल्ड इज मेन वर्ब. तो इन दोनों के बीच में रखा गया है ऑलवेज को. दैट्स व्हाई ऑलवेज इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चन. एज उसके वर्ड से पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या बताता है? क्वेश्चन को फ्रेम करता है. दे आर हाउ, वर, व्हेन एंड व्हाई. तो कौन कौन से वर्ड से बनता है? हाउ, वर, व्हेन एंड व्हाई. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो, है ना. तो इट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव से मतलब जब दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं जिस वर्ड से, तो वो रिलेट करता है. तो रिलेट से रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस. दे रेफर बैक टू नाउन्स और प्रोनाउंस एज एंटीसीडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, that is the nursery school. It is a class where I used to study. कहाँ पर? नर्सरी स्कूल. तो इट इज नाउन को बता रहा है जहाँ पर मैं पढ़ता था. तो वर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब. Here where is not interrogative. It is here क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रहा है. तो in this condition where is relative adverb. Like adjectives, some adverbs have degree of comparison too. They are positive, comparative and superlative degree. पॉजिटिव यू से एंग्री का एडवर्ब क्या हो जाएगा? एंग्रीली. काम का कामली. वंडरफुल का वंडरफुली. कंपैरेटिव डिग्री एंग्रियर मोर एंग्रीली. कामर मोर कामली. मोर वंडरफुल मोर वंडरफुली. सुपरलेटिव डिग्री का देखिए, एंग्रीएस्ट more angrily, most angrily, sorry. Calmest, most calmly. And last one, most wonderful, most wonderfully. Okay children, I hope that now you have understood the topic adverbs very well.